Yes, very good. To strengthen the positive behavior, we give the reinforcement. Very good. And I just want to know what is the basic difference in between the preferred item and the reinforcement? Can anyone tell? What is the difference between the reinforcement and the preferred item? सर प्रेफर्ड आइटम तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई टेंजिबल चीज हो सकती है, बच्चे का टॉय वगैरह। उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। और इन्फोर्समेंट आप एज अ थेरेपिस्ट दे रहा होता है बच्चे को कोई भी प्रेज या रिवॉर्ड। नहीं, ये कंप्लीट डिफरेंस नहीं है। एनीथिंग ओके एल्स? सर। ट्राई करें, कोई मसला नहीं। अगर गलत हो भी जाता है तो इट्स टोटली फाइन। ट्राई इट, माइट बी आप सही आंसर कर दो। Okay, so let me explain it. So reinforcement is basically a preferred item is something that anybody likes. Like for example, if I like the ice cream, I like the chocolate, I like candy. So that is my preferred item. I prefer these things. If someone asks you, do you want to eat the chocolate ice cream or the mango ice cream? Might say I love the mango ice cream. I would like to eat it. So instead of eating chocolate, I will prefer the mango ice cream. So this is my preferred preference, that I like something more. Okay, so that is my preference. So when I talk about the reinforcement, reinforcement is something that a person or an individual work for. Okay, so if your child or your student does not work for the mango ice cream or the chocolate ice cream, so that is not the reinforcement for that child. Might be that item is the preferred item, he likes to take it, he likes to play with it, he likes to eat it. So but that preferred item is not uh, making him work. So वो बच्चा उस चीज के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। इफ इफ यू सी दैट कि एक ऑब्जेक्ट लेने के लिए कोई एक बच्चा काम कर रहा है, एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, सो देन दैट आइटम इज अ रीइंफोर्समेंट। बिकॉज उस एक रीइंफोर्समेंट की वजह से एक बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अगर उस आइटम से रिस्पॉन्सेज नहीं आते या आप फील नहीं करते कि रिस्पॉन्स आएगा, सो देन दैट इज जस्ट अ प्रेफर्ड आइटम, नॉट अ रीइंफोर्समेंट। So this is a basic difference in between the preferred item and the reinforcement. So reinforcement always increases the behavior. So punishment decreases the behavior. If you want to increase the behavior, you provide the reinforcement. Okay. So if you want to decrease the behavior, you provide the punishment, right? So it always increases the probability of a response, and it increases the frequency of the responses as well. So I just want to know how many types of reinforcements are there. Can anyone tell me how many Two types of? types, positive and negative. Okay, positive reinforcement and negative reinforcement. So what is the difference in between the positive reinforcement and the negative reinforcement? सर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में हम हमेशा जो है ना वो कोई चीज ऐड करते हैं जो कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का ये प्लेजेंट स्टिमुलस है तो हम वो ऐड कर देंगे। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम जो है ना वो रिमूव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्लेजेंट स्टिमुलस है वो कोई भी बच्चे के लिए, फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क नहीं किया तो एक गेम टाइमिंग जो है उस बच्चे के लिए वो उसके लिए प्लेजेंट स्टिमुलस है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। Okay, if we remove the preferred item, so that will increase the behavior or not? Removing the object will increase the behavior or decrease the behavior in negative reinforcement? सर सर इंक्रीज करेगा ना। सर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम अनप्लेजेंट चीज जो होती है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। और कोई बताएगा?
कोई एग्जांपल मुझे सर दे सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के हवाले से? सर जैसे कि एक बच्चे को जो है वो साउंड से इरिटेशन होती है। मैं हम्म। क्लास में साउंड लगा देती हूँ और मैं बच्चे से कहती हूँ ये साउंड तब रिमूव होगी जब आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे या ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। बच्चा जैसे वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है मैं उस अनप्लेजेंट साउंड को रिमूव कर देती हूँ। हम्म, ठीक है, ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाहेगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के हवाले से? Anybody? Okay, so you guys are right. So even though the reinforcement is negative or the reinforcement is positive, it always increases the behavior. So मुझे याद है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि नेगेटिव reinforcement कैसे होती है, हाउ डू वी प्रोवाइड द नेगेटिव reinforcement, या इसका प्रोसीजर क्या है? सो दे ऑलवेज सेज दैट सर, जब बच्चा कोई प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा होता है तो हम उससे वो चीज़ ले लेते हैं, उसका रीइंफोर्सर, जिससे उसका बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, और एनी अदर एग्जांपल? सो एक स्टूडेंट कहता है कि सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब हम नेगेटिवली बच्चे को डील करते हैं, उसको उससे कोई चीज़ ले लेते हैं या उसको हार्म पहुंचाते हैं, जैसे चूंटी काट लेना उसको या पानी स्प्रे कर लेना, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिससे बिहेवियर डिक्रीज हो जाते हैं। सो आई सेड दिस इज नॉट द नेगेटिव reinforcement. The word negative does not mean like harming someone or pinching someone or spraying water on someone. It does not mean that आप किसी को harm कर सकते हो. So negative just mean to remove it. Negative, removing something, and reinforcement, increasing the behavior. So we increase the behavior through removal of any stimulus. So that is the negative reinforcement. If we talk about the positive reinforcement, that is something adding. Positive mean adding something to increase the behavior. So the reinforcement, even though the reinforcement is positive or negative, it always increases the behavior. We never ever harm anyone to decrease the behavior or increase the सर behavior through negative reinforcement. Yes. सर रिमूविंग समथिंग विच इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट So बोथ। ओके anything सर। that is removed and it is increasing the behavior is called the negative reinforcement. Okay. Okay. So the reinforcement, अब हमें क्लियर हो गया कि reinforcement क्या चीज़ है. So usually what happened whenever I go for the observation of any therapist, so I usually look at कि वो reinforcement use ही नहीं कर रहे वो therapist. So they are not giving reinforcement. When I asked that it is not the reinforcement of the child, the therapist asked me, sir, how? So why this is not the reinforcement? I says that reinforcement is something that actually motivates a child to generate a response, even though good response or any other response, he just want it, okay, in any condition. So that is actually the reinforcement. So एक बच्चा था, वो F2 का टारगेट कर रहा था, F2 एबल्स का प्रोग्राम है, F डोमेन में रिक्वेस्टिंग. सो उसमें ये था कि टेक रीइंफोर्सर, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर द रीइंफोर्समेंट थ्रू पॉइंटिंग, ग्रैबिंग और वर्बल स्टिमुलस. तो अब वो बच्चा जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो रीइंफोर्सर वो यूज कर रहा था, वो रीइंफोर्सर की तरफ देख भी नहीं रहा था बच्चा. स्टूडेंट ने कोई कहीं और देख रहा है, वो रीइंफोर्सर थेरेपिस्ट उसको शो कर रहा है, व्हाट डू यू वांट, एंड ही कीप्स ऑन सेइंग व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट. द चाइल्ड इज डज नॉट did not take interest in that item जो भी वो उसको दिखा रहा था. So then I asked her, is it the reinforcement of the child? उन्होंने कहा हाँ, इसको ये चीज़ पसंद है. तो लेकिन अगर वो पसंद है तो वो उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहा? सो एटलीस्ट अगर कोई चीज़ पसंद हो तो बंदा उसकी तरफ देखता तो है, इंटरेस्ट लेता है, वो ट्राई टू ग्रैब इट, या कोई भी चीज़ है उसको लेने की कोशिश करता है, उसको पॉइंट करता है या हाथ पकड़ के खींचता है कि ये चीज़ मुझे दे दो. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दैट मीन्स दोज थेरेपिस्ट आर नॉट
not using the appropriate reinforcement with the kids. They are just like they if they think that this is the reinforcement, they use it until unless they never ever like did the preference assessment to find out the preferred most preferred item which can be a reinforcement, so they never tried it. They just use the typical ways. अच्छा इस बच्चे ने इसको एक बार देखा था, इसको उठाया था, तो ये इसका reinforcer हो सकता है। नहीं, it is not like that. You have to do the proper assessment for the preferred items. ठीक है? Okay, so the role of antecedent stimuli. So as I have explained very well about the ABC of the behavior, antecedent, behavior, and consequences. So I think so you guys are very clear about the antecedent responses and consequences now, as we did the practice, and I also gave you an example assignment previously to write down a scenario, 20 scenarios in which you have to find out the antecedent responses and consequences. So I hope so this is clear to everyone. So we will move next. So in the three-term contingency, if we ask a child to give me A and the child gave the A, so teacher says, "Good job, here your candy." So the teacher gives the child a candy. So that candy serves as a reinforcement. So when he gets the candy, his reinforcement, his motivation increases to get the candy. Okay, so he might again and again follow the instruction of the child to get the candy as a reinforcement. Okay, so this is the three-term contingency. And if we talk about the four-term contingency, let's discuss about the motivating operation first. So motivation operation, okay, so you know what is reinforcement, right? So what is reinforcement, what is the preferred item, what is the difference in between it, and how reinforcement सर works? Yes. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे रिन्फोर्सर और प्रेफर्ड आइटम में क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह बच्चे का रिन्फोर्सर और प्रेफर्ड आइटम को अलग अलग करेंगे। देखो, प्रेफर्ड आइटम जो है वो आइटम है। आप मुझे बताओ गुलजेब, आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में? चॉकलेट्स। चॉकलेट पसंद है। अगर गुलजेब मैं आपको कहूँ कि आपने 50 पुशअप्स करने हैं और मैं आपको छोटी सी चॉकलेट दूंगा, तो आप उस चॉकलेट के लिए 50 पुशअप्स करोगे? मे बी। मे बी नहीं, नहीं, सही पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताएं रियलिटी, अगर आपको कहता तो विल यू डू दैट? नो सर। नहीं, आप नहीं करेंगी। अगर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं कहूँ कि 50 पुशअप्स लगाने हैं, उसके बदले आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या मांगोगी? न्यू बैग। न्यू बैग और और ड्रेस। ड्रेस, ज्वेलरी, राइट? यस। So जी सर। these things are your reinforcement. So chocolate is not your reinforcement, right? You like it, you like the chocolate, but might be you will not work for it. You will not generate any response for that chocolate, right? So this is the basic difference in between the preferred item and a reinforcement. बट सर जब हम बच्चे का रिन्फोर्सर फाइंड करते हैं तो उसमें तो हम बच्चे की प्रेफर्ड आइटम ही देख रहे होते हैं ना, कि जो उसने सबसे पहले बच्चे ने प्रेफर्ड आइटम लिया है वो उसका रिन्फोर्सर है। तो हमें Yes, कैसे पता चलेगा कि ये इसका रिन्फोर्सर है और ये प्रेफर्ड आइटम है। मैं आपको बताता हूँ। जो प्रेफरेंस असेसमेंट करने का सही तरीका है वो ऐसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क द पेरेंट्स, आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा मेरे आप पूछते हो कि उसको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। वो बता देते हैं, दो तीन चीज़ें बताएंगे, अच्छा ये इसको ये चीज़ें पसंद है। फिर आप पूछते हो कि इसको टॉयज़ में क्या क्या चीज़ें पसंद है। वो भी तीन चार चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें पसंद है। फिर उसके बाद आप उससे पूछते हो कि इसको खेलने में क्या चीज़ पसंद है। फिर वो कहते हैं अच्छा ये चीज़ें हैं जो इसको पसंद है। ठीक है, आपने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, सो आपने फिर उसके बाद जो है वो जो आइटम्स जो पेरेंट्स ने आपको बताई हैं खाने में, खेलने में और टॉयज में। ठीक है, सो एक्टिविटीज और टॉयज और सर। फूड आइटम्स। एक सेकंड में क्लियर सर कर दूं, जस्ट अ सेकंड। उसमें फिर ओके सर। आपने क्या किया कि उस लिस्ट को अपने पास रखा और साथ ही कुछ और एक्टिविटीज आइटम्स वगैरह ऐड की। आपने दो तरह की असेसमेंट करनी होती है, एक में एडिबल आइटम्स डालने होते हैं, एक में आपने नॉन एडिबल आइटम्स की प्रेफरेंस असेसमेंट करनी होती है।
अच्छा, वो जो आप करते हो ना, वो आप बार बार डेली बेसिस के ऊपर आप असेस कर रहे हो, उस बच्चे की प्रेफरेंस को चेक कर रहे हो। अगर वो हर रोज एक दिन भी उसने कार कार पिक किया एज अ रीइंफोर्समेंट, सेकंड डे भी उसने कार पिक किया एज अ रीइंफोर्समेंट, थर्ड डे भी उसने कार पिक किया एज अ रीइंफोर्समेंट, या 5 5 ट्रायल्स आप ले रहे हो ऑब्जेक्ट पिकिंग में, तो हर बार वो कार पिक कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो जो प्रेफर्ड आइटम है कार, वो एक अच्छा रीइंफोर्सर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम आई प्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सो हर बार वो कार पिक करता है, वो कार के साथ खेलना पसंद करता है। तो हो सकता है, तो इन ए बी ए वी नेवर यूज द वर्ड द लाइक के इसका यही एक रीइंफोर्सर है। वी ऑलवेज सेज दैट दिस माइट बी द reinforcement फॉर द चाइल्ड। वी यूज द वर्ड माइट बी, हो सकता है कि ये रीइंफोर्सर हो। एबीए में हमेशा माइट बी का वर्ड यूज होता है। सो उसमें हमें कभी भी 100% किसी चीज के बारे में नहीं कहते कि ये इसका रीइंफोर्सर ही है, यही है 100% ये। नो, वी नेवर कैन नॉट, वी कैन नेवर एवर से इट। सो वी एवर एवरी टाइम यू विल यूज द वर्ड एज अ माइट बी, हो सकता है ये रीइंफोर्सर हो। ठीक है। सो द कार जो कि उसका बार बार डेली बेसिस पे अब वो कार ही पिक कर रहा है, सो हो सकता है कि इसकी कार एज अ रीइंफोर्समेंट वर्क कर सके। सो ये बेसिक डिफरेंस है प्रेफर्ड आइटम और रीइंफोर्समेंट में। ठीक है। गॉट इट। यस सर। ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है मोटिवेटिंग ऑपरेशन। मोटिवेटिंग ऑपरेशन क्या है? एक तो रीइंफोर्समेंट आपको क्लियर होगी, प्रेफर्ड आइटम और रीइंफोर्समेंट। अभी हम बात करते हैं मोटिवेशन ऑपरेशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो इसको आपने बहुत एहतियात से समझना है और माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट इन फ्यूचर इन योर करियर इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। सो मोटिवेशन ऑपरेशन, जब भी आपने किसी भी पर्सन की मोटिवेशन को हाई करना है, आप क्या करते हो? आपके पास क्या तरीके होते हैं? कोई बता सकता है? अगर किसी चीज के लिए आपने उसकी मोटिवेशन बढ़ानी है किसी भी पर्सन की, तो आप क्या करोगे? उस चीज के बारे में प्लस पॉइंट्स उनको बताएंगे ताकि वो इनकरेज हों। ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा क्या बात है, क्या हो सकता है? ताथीर सेट सेट रिवॉर्ड्स। हाँ, हम रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि रीइंफोर्समेंट के लिए हम, फॉर एग्जांपल देखें ना, अब मोबाइल फोन है। मैमूना, आपके पास फोन है ना? सो आपको मैं कहूँगा, मैं आपको फोन देता हूँ, आप मेरे लिए ये काम कर दो। आपको, मेरे पास तो ऑलरेडी फोन है, मुझे क्या जरूरत है दूसरे फोन की? ठीक है। तो आप नहीं काम करोगे। लेकिन अगर मैं आपका फोन पकड़ता हूँ और वो तोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको अब मैं न्यू फोन दूंगा, आप अगर ये काम कर दो तो अब यू डोंट हैव द फोन, यू आर डेफिसिट विद द फोन। so you will say, okay, I will do it, okay, to just to get the phone, because now your motivation to get the phone is high because you are deprived from the phone now. ठीक है। as the same situation, if you are in desert, you don't have the water, सूरज आपके सर के ऊपर है, तपिश बहुत ज़्यादा है, नीचे रेत है आपके पाँव में, आप चल रहे हो, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप प्यास से आप बेहोश होने वाले हो। तो कोई आपके पास आता है, आपको कहता है कि ये वाटर बोतल है और ये मैं 10,000 की दूंगा आपको, 10,000 की, और आपने लेनी है, लो, अदरवाइज मैं नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ। तो आप क्या वो वाटर बोतल खरीदोगे 10,000 की? यस सर। क्योंकि क्योंकि आपको, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अदरवाइज इफ यू विल नॉट हैव इट, आप यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द वाटर, आप तो डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। माइट भी आपकी किसी भी की भी, सॉरी आपकी नहीं, आई विल चेंज माई वर्ड्स, मतलब कि वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है।
सो उस गर्मी की वजह से उस डिजर्ट में उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, इतनी गर्मी है, उसको वो डिहाइड्रेटेड हो रही है उसकी बॉडी, वो फेंट हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको जस्ट अ मिनट। ओके, सो um, अब जो जो डेप्रीवेशन है उसकी वजह से किसी भी आइटम की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, जब उस चीज़ से इंसान डिप्राइव्ड हो जाता है, चाहे वो फूड आइटम है या प्ले आइटम है, खेल है, कूद है, टॉयज हैं, या मोबाइल, कोई भी चीज़ है, सो अगर वो नहीं है, उससे डिप्राइव्ड है, सो उस आइटम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। ये जो अफेक्ट है, इट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। सो मोटिवेशन ऑपरेशन, जो एक मेन इसकी हेडिंग है, motivation operation is an effect that alter the reinforcing effectiveness of a stimuli and thus alter the momentary frequency of responses reinforced by those stimuli. सो इस जो मोटिवेशन ऑपरेशन है इसकी दो सब टाइप्स है ना, एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन एंड अबॉलिशिंग ऑपरेशन। जो एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन है उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए डिप्राइव्ड होता है, तो वो उसकी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और उस आइटम की और उसके लिए रिस्पॉन्सेज और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। और फिर उसके बाद अबॉलिशिंग ऑपरेशन आ जाता है। अबॉलिशिंग ऑपरेशन इज समथिंग जब किसी के पास कोई चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ईटन इनफ, आपने अच्छे से खाना खाया हुआ है, मैं आपको कहूँ कि चलो यार बाहर घूमने चलते हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो वो आपका दोस्त कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें आज बर्गर खिलाऊंगा, आप कहते हो नहीं यार मैं ऑलरेडी फुल, मैंने खाना खाया हुआ है तो मैंने बर्गर नहीं खाना, मैं नहीं जा रहा। So why your motivation is not building? Because due to the burger, even though you like the burger, you like to eat it, but your motivation is not increasing because of the burger. So it is happening because you already have it. So आपने already खाना खा चुके हैं, तो इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है और खाने की, आपके लिए बर्गर की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, ठीक है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से हम जो है उसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है, हम कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द अबॉलिशिंग ऑपरेशन इफेक्ट। अब जैसे इन ए बी ए सेशन, अगर ए बी ए सेशन की एग्जांपल देता हूँ, हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, अगर कंटिन्यूअसली एक ही रीइंफोर्समेंट यूज़ करते रहें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट विल हैपन? The value of that reinforcer will decrease over time. Why? Because of the satiation. Satiation is called the satisfaction. So the child might satisfied from that reinforcement, so that's why he don't need it anymore. ओके, सो इसलिए कहते हैं कि जब रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, उसकी क्वांटिटी शुरू में तो हाई रखते हैं, लेकिन आहिस्ते से उसकी क्वांटिटी और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कम कम होना शुरू हो जाती, रैंडम देना शुरू कर देते हैं,
कि हर रोज़ अगर मिलेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जो है रीइंफोर्समेंट को हम कहते हैं कि क्वांटिटी में कम और कभी कभी रीइंफोर्समेंट। हर रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट देने से क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उससे रिस्पॉन्सेज आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज भी कहते हैं, कि जब हम कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं, हर रिस्पॉन्स के बाद हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट दें, तो इट विल हैव एन इफेक्ट ऑफ पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज। लाइक 5 रिस्पॉन्सेज के बाद या 10 रिस्पॉन्सेज के बाद बच्चा रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना ले लिया है वो रीइंफोर्समेंट कि उसको अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, अब वो उसको अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, चाहे वो फूड है या टॉयज है। ठीक है, सो दिस अफेक्ट इज कॉल्ड द अबॉलिशिंग अफेक्ट या अबॉलिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन क्या है? जब कोई सी चीज़ से पर्सन डिप्राइव्ड हो जाता है और उसकी डिप्रीवेशन की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, और अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की